the live session for PharmaCon Week 2. I hope you have all gone through the two lectures, the two parts of our Week 2 lectures. And I'm very hopeful कि आप आज बहुत interesting और बहुत questions, a lot of questions आप लोगों के mind में होंगे definitely with respect to international pharmaceutical laws, international pharmaceutical link with the international marketing, and what are the requirements, how it is done, what is the procedure, what are the processes that are involved, raw countries क्या हैं, rest of the world countries क्या हैं, regulatory का market कौन सी होती है. I hope you have gone through the lectures, and the forum is open for all of you. Please type away your questions, whatever the questions that you have in your mind with respect to the lecture that was conducted, and any other questions that you have in mind from week 1 as well. So we are here to entertain all your questions. Please type in your questions. If you want to ask any questions verbally as well, please raise your hand so we can allow you, and you can ask your questions directly as well. The forum is open. Please type away your questions, and I would be happy to answer to all of your questions. Yes, Sundar, do you have a question in mind? I can see your hand raised. Yes, ma'am. I have one question that you have described the developed countries as well as developing countries. In the developed countries, you state that stringent regulatory authority bodies. What is stringent regulatory? As it is stringent or astringent? Okay. So, very nice questions on this. First of all, please understand जो word मैंने use किया है that is SRA. ठीक है? SRA is stringent regulatory authority countries. So SRA countries को आप stringent regulatory authority countries भी कहते हैं. बहुत सारी जगहों पे आपको SRA की जगह RRA लिखा मिलेगा, यानी कि रेफरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी. ठीक है जी. सो SRA एंड RRA आर द सेम थिंग्स. अगर आपको SRA कहीं लिखा हुआ मिलता है तो भी, और RRA कहीं पे लिखा हुआ मिलता है तो भी, बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर सेम. सो स्ट्रिंजेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी का मतलब ये है कि जो स्ट्रिंजेंट का वर्ड है, स्ट्रिंजेंट मतलब है स्ट्रिक्ट. ठीक है, यानी दे हैव अ स्टैंडर्ड, दे हैव अ प्रोटोकॉल, दे आर द इनोवेटर्स. यानी इन ये वो कंट्रीज हैं जो कि रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड्स बनाती हैं एज इनोवेटर्स, and as generic countries that are rest of the world market or the regulatory, हम इनको follow करते हैं. So SRA countries are the 5 main countries जो मैंने आप लोगों को presentation में बताई थी. USA, Canada, Japan, Australia and EU, that is Europe. So all of these 5 countries are called the SRA countries, यानी ये आपकी standard regulatory authority countries हैं जो कि रूल्स, रेगुलेशन, स्टैंडर्ड्स, SOPs, गाइडलाइंस सेट करती हैं in order for rest of the world market to follow them accordingly. I hope I've answered your question, Suresh. Yes, ma'am. It is clear. Thank you so much. You're welcome. Please, बच्चों, I am looking forward to the questions. I want you people to ask me as much as possible. क्या ambiguities हैं, क्या समझ नहीं आ रहा है, what clarification do you require, department से related, topic से related,
और अगर आप में से किसी ने अभी तक कोई इंटरव्यू दिया है, if you have any question regarding that as well, I am happy to answer all of your questions. Please come forward and ask your questions accordingly. All right, Villa Zainab has a question. What is the difference between medical affairs and regulatory affairs? Villa, I believe I've already answered this question in my last session. बहुत डिटेल में मैंने इस सेशन को इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया था. It would be better for you to check our previous recording as well, क्योंकि इसके ये क्वेश्चन मुझसे लास्ट क्लास में पूछा गया था. One of the things that I want to clarify here is that it is beneficial for all of you to attend all the sessions, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं जो पिछले सेशन में डिस्कस हो चुकी हैं, एंड ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट्स, ड्यू टू लिमिटेड टाइम पीरियड्स ऑफ आवर सेशंस, हम कोशिश करते हैं कि हम हर सेशन में आपसे नई इंफॉर्मेशन शेयर करें. सो इट इज़ बेटर दैट यू ब्रिंग टू अस न्यू क्वेश्चंस, एंड इफ देयर इज एनी एम्बिग्विटी विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस सेशंस, हमारे सेशंस, हमारी रिकॉर्डिंग्स सारी अवेलेबल हैं ऑन आवर लिंक्डइन एंड यूट्यूब पेज. आप वहाँ पर जाके प्लीज़ उसको रिव्यू करें, एंड आई वुड सजेस्ट कि आप हमारे सारे सेशंस कंडक्ट करें, ऑनलाइन भी और रिकॉर्डेड भी. तो आपकी सारे पुराने क्वेश्चन जो राइट नाउ यू आर आस्किंग मी द डिफरेंस बिटवीन मेडिकल अफेयर्स एंड रेगुलेटरी अफेयर्स, बहुत डिटेल में हमने अपने फर्स्ट सेशन में भी एक्सप्लेन किया था, सेकंड सेशन में भी एक्सप्लेन किया था, और जो हमारा लास्ट वीक Q&A हुआ था उसके अंदर भी हमने एक्सप्लेन किया. Alright, Kanza Umar has a question. What is meant by contract manufacturing process? Alright, जनाब, very interesting question. इसके ऊपर मैं पूरी क्लास रख सकती हूँ, क्योंकि ये इतना तो पाकिस्तान के अंदर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के अपने रूल्स हैं, अपनी पॉलिसी है. यानी वी हैव एन एंटायर पॉलिसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, जिसके अंदर आपके पास दो सिनेरियो एक्सप्लेन किए गए हैं. एक सिनेरियो जो कि कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, यानी कॉन्ट्रैक्ट गिवर जिसको हम कहते हैं, और दूसरा सिनेरियो है कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टर का, जो कि कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करता है. अब आपके पास जो कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट होता है वो दो तरीकों का होता है. आइदर वो टॉल होता है या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है. टॉल मैन्युफैक्चरिंग और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ एक माइनर सा डिफरेंस है कि आपके पास एक के अंदर जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, द प्रोक्योरमेंट ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, वो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट गिवर दे रहा होता है in order to manufacture a product for the acceptor. और दूसरे में ये होता है कि आपके पास एक सारी जो कलेक्टिवली जो प्रोक्योरमेंट होती है मटेरियल की, वो एक्सेप्टेड ही कर रहा होता है, और वो फाइनली एक यूनिट कॉस्ट बता देता है कि भाई ये यूनिट कॉस्ट है जो आपको पर पैक चार्ज हम करेंगे. ठीक है जी. सो ऑल इन ऑल दोनों चीज़ें सेम ही हैं, बट इसके अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, वो ये है कि एक कॉन्ट्रैक्ट गिवर होता है जो कि प्रोडक्ट ओनर होता है. ठीक है. तो जो प्रोडक्ट ओनर होता है वो सेलेक्ट करता है किसी मैन्युफैक्चरर को. फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक कंपनी है, मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं है इंजेक्टेबल्स की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी मेरे पास नहीं है. अब मैं क्या करूँ? मेरे पास मुझे दिख रहा है पोटेंशियल है मार्केट के अंदर, और मुझे एज सून एज पॉसिबल कोई नया मॉलिक्यूल मार्केट में लेकर आना है. तो अब मैं वेट नहीं कर सकती कि मैं अपनी कंपनी में वो डेवलप करूंगी, वो एरिया डेवलप होगा, फिर उसकी इंस्पेक्शन होगी, जिसमें आराम से कोई 3-4 साल बहुत आराम से जाते हैं. सो मेरे लिए जो एक गो टू प्रोसेस होगा वो होगा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का, टॉल मैन्युफैक्चरिंग का. मैं सिंपली ये करूंगी कि मैं एक ऐसी कंपनी को सिलेक्ट करूंगी जिसके पास इंजेक्टेबल्स का एरिया है. ठीक है. ड्रैब आपको अलाउ करता है कि इन केस आपके पास अगर फैसिलिटी नहीं है तो आप किसी और कंपनी से वो प्रोडक्ट बनवा सकते हैं अंडर योर नेम, यानी कि उस प्रोडक्ट की रजिस्ट्रेशन तो आपके नाम पे होगी, लेकिन आप मैन्युफैक्चरर किसी और के नाम से कर रहे हैं. तो अगर आप पैनाडोल का डब्बा उठाकर देखेंगे तो उसके ऊपर दो चीजें लिखी हुई हैं. एक लिखा होगा मैन्युफैक्चर्ड बाय फार्माटेक, और दूसरा लिखा होगा मार्केटेड बाय जीएसके, या अब हेलियन का वर्ड आता है, हेलियन होगी क्योंकि जीएसके कंज्यूमर है. सो अगर आप देखें तो उसके अंदर जो
प्रोडक्ट को बना रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो फार्माटेक है। अब फार्माटेक बेसिकली क्या है? फार्माटेक कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टर है यहाँ पे, जिसने जीएसके से या हेलियन से ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट किया कि भाई हम आपके लिए ये प्रोडक्ट बनाएंगे, हमें पर यूनिट इतनी कॉस्ट चार्ज हम आपको करेंगे और हम आपका पर ईयर पर मंथ इतने बैचेस आपको बनाकर देंगे। और ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट होते हैं। और वंस बोथ द पार्टीज हैव अग्रीड इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, फिर हम एक डोजियर फाइल करते हैं जो कि सीटीडी पे सबमिट होता है। उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स सारे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर यानी जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके आपको दे रहा है उसकी डॉक्यूमेंट्स जाते हैं और एप्लीकेंट के भी कुछ डॉक्यूमेंट जाते हैं उसके अंदर, एंड ऑल इन ऑल 2 कंपनीज मिलके एक प्रोडक्ट को रजिस्टर करवाती हैं। सो ये एक सुपरफिशियली सा इंट्रो है ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। If you want, we can have a detailed discussion on contract manufacturing as well. But right now, I think इस वक्त इतनी information for contract manufacturing would be enough for you to understand, because there are so many other things जो कि फिर इसके अंदर involve होती हैं, बहुत सारे documents involve होते हैं, contract internal agreements कैसे sign होते हैं, draft के अंदर कौन सा agreement contract submit होता है। So there are a lot of things जो कि contract manufacturing के portfolio में fall करती हैं। So yes, we can have a detailed discussion in our future in classes as well over contract manufacturing. Alright, Kanzai, I hope आपको to some extent you've understood what contract manufacturing is. Alright, I would appreciate more questions. Please bear in mind कि ये session थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट सेशन होता है, टाइम रिस्ट्रिक्टेड है, इसीलिए कोशिश हमारी पूरी होगी कि हम आपके क्वेश्चंस देन एंड देयर रिस्पॉन्ड करें, बट फॉर दैट यू विल हैव टू आस्क अस द क्वेश्चंस एज सून एज पॉसिबल। जितनी जल्दी आप हमें क्वेश्चन सबमिट करेंगे उतनी जल्दी हम आपको रिस्पॉन्स देंगे। Alright, Varisha has a question. After export dossier registration, what is the next step? Alright, so हर कंट्री की अपनी गाइडलाइंस होती हैं, हर कंट्री की अपनी रेगुलेशंस होती हैं, हर कंट्री की अपनी जो है वो क्राइटेरियाज होता है विद रिस्पेक्ट टू रजिस्टरिंग अ प्रोडक्ट। सो अगर हम बात करते हैं डोजियर रजिस्ट्रेशन की, एक्सपोर्ट डोजियर रजिस्ट्रेशन की, सो एक्सपोर्ट डोजियर रजिस्ट्रेशन के अंदर देयर आर इंस्टेंसेस इस वक्त एट करंट पॉइंट इन टाइम, बहुत सारी कंट्रीज हैं, स्पेशली अफगानिस्तान, यमन, सूडान। आप सबको पता है कि इस वक्त इन कंट्रीज की सिचुएशंस क्या हैं। सो यहाँ पर इस वक्त करंटली जो सिचुएशन मैं आपको बता रही हूँ वो ये है कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डोजियर सबमिशंस से पहले ही प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर मेडिसिन की इतनी ज़्यादा नीड है, इमरजेंसी क्योंकि वहाँ पर लागू है, तो इसीलिए जो एक नीड वहाँ पर बनी हुई है वो ये है कि एज सून एज पॉसिबल मेडिसिन को उन तक पहुँचाया जाए, प्रोडक्ट्स को उन तक पहुँचाया जाए। अच्छा, लेकिन अगर हम इसी तरीके से CIS से आसियान कंट्रीज में जाते हैं तो यहाँ पर स्ट्रिंजेंट रेगुलेटरी प्रोसीजर्स हैं, स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी प्रोसीजर्स हैं, जिनके तहत आपको एक सर्टेन डॉक्यूमेंट, सर्टेन डोजियर्स उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आपको सबमिट करना होता है, एंड वहाँ पर जाकर जो है वो यू विल गेट द रजिस्ट्रेशन। अब जब रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाती है तो रजिस्ट्रेशन से पहले भी एक स्टेप होता है कंपनी रजिस्ट्रेशन का। तो पहले आप अपनी कंपनी को उनकी अथॉरिटी में रजिस्टर करवाते हैं, फिर आप प्रोडक्ट्स को उनकी अथॉरिटी में रजिस्टर करवाते हैं, एंड फाइनली जब प्रोडक्ट्स उनकी अथॉरिटी में रजिस्टर हो जाते हैं तो आपको जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, आप लोगों ने बिफोर अप्लाइंग टू द कंपनी रजिस्ट्रेशन, द डिस्ट्रीब्यूटर एंड द कंपनी डिसाइड्स द फोरकास्ट। फोरकास्ट क्या होती है? प्रोडक्ट्स होते हैं कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट मैंने सेलेक्ट किया है और मुझे साल के इतने बैचेस, इतने यूनिट्स चाहिए, ठीक है। वंस दैट इज फाइनलाइज्ड, दैट इज बीन डन, आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि आप जो है वो यू मूव टुवर्ड्स रजिस्ट्रेशन। वंस द रजिस्ट्रेशन इज डन, कंपनी यहाँ पर अपने बैचेस बनाना शुरू करती है। डेफिनेटली आपके जो पैक्स होते हैं वो भी पाकिस्तानी पैक्स नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी आसियान स्टेट में जा रहे हैं, आप सेनेगाल में जा रहे हैं, आप लाओस में जा रहे हैं, तो वहाँ की जो रिक्वायरमेंट है उनको फ्रेंच में पैक्स चाहिए होते हैं, रिक्वायरमेंट्स ही डिफरेंट हो गई। कोई अरब स्टेट है तो उनको अरबिक में चाहिए होंगे, कोई और स्टेट है तो उनको उनकी लैंग्वेज में पैक्स चाहिए होंगे। तो
अब मैं उन पैक्स को किस तरीके से डेवलप करूंगी? either I need to have that language expert on my behalf, मेरी फैसिलिटी के अंदर वो एक्सपर्ट होना चाहिए लैंग्वेज का, या फिर मैं उनके पास इंग्लिश पैक्स भेज के उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे पैक्स की ट्रांसलेशन कर दें। Once that is done, packs are formed, artwork ready हो जाता है, product ready होता है। अब the next step is to prepare the batches। यहाँ पर batches बनते हैं, supply chain का एक बहुत strong role होता है इधर। इस exactly वही role होता है जो हमारा local commercialization में होता है, लेकिन क्योंकि processes जो है वो थोड़े different होते हैं, definitely export का एक लंबा procedure होता है। अच्छा, कुछ पॉलिसीज हैं हमारी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट की पॉलिसीज के अंदर, ये क्लियर कट लिखा हुआ है कि आप जब प्रोडक्ट को इम्पोर्ट करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ कम से कम द मैक्सिमम दैट इज अलाउड इज 75, मतलब 75% से नीचे प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ नहीं होनी चाहिए। अगर प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ 75 से नीचे चली गई सो प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल नहीं है पाकिस्तान के अंदर। एंड सेम गोज फॉर व्हेन वी आर एक्सपोर्टिंग द प्रोडक्ट। हर कंट्री की अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर किसी कंट्री की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि उनको सर्टेन शेल्फ लाइफ के ऊपर प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है, सो इन दैट केस उस शेल्फ लाइफ को मेंटेन करते हुए वी मेक श्योर कि हमारा प्रोडक्ट विद इन दैट टाइम पीरियड उस कंट्री तक पहुंच जाए। फिर एक इंटायरली प्रोसेस चलता है, जीडी साइन होती हैं, एलसीज ओपन होती हैं, वो एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, अभी हम क्योंकि इंट्रोडक्टरी कोर्स के ऊपर हैं सो हम इसको यहीं तक ही रखते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद प्रोक्योरमेंट के कुछ डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ड्रैप के पोर्टल के ऊपर हमें एनओसी क्लियरेंस चाहिए होती है, हम एनओसी लेते हैं, फिर हम उस एनओसी को सबमिट करवाते हैं जहाँ से हमने अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना होता है। सो वो एक इंटायरली लॉजिस्टिक का पार्ट होता है। सो वंस दैट इज डन, हमारा प्रोडक्ट जो है वो रिस्पेक्टिव कंट्री में पहुंच जाता है। इट कुड बी आइदर थ्रू सी और इट कुड बी आइदर थ्रू एयर। सो दोनों आपके पास पाथवेज हैं, आइदर आप सी के थ्रू भेजते हैं और आप अपने जो है वो एयरवेज के थ्रू भेजते हैं। आई होप अलीशा आपको क्वेश्चन। ऑलराइट, मोइस का क्वेश्चन है ऑरेंज बुक क्या है। ऑलराइट बच्चे, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे यूएसएफडीए का पूरा एक चैप्टर आपको पढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज ऑरेंज बुक इज पार्ट ऑफ अ वेरी स्ट्रिंजेंट रेगुलेटरी बॉडी विच इज यूएसएफडीए। मैंने आप जिस तरीके से मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था इन माय लेक्चर एज वेल, यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अंदर आपके पास डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, ब्लैक बुक, पर्पल बुक, ऑरेंज बुक, different equivalencies, therapeutic factors, but before hopping on to orange book, I think it is better for you to understand कि USFDA का procedure क्या है और हम उनको innovators क्यों consider करते हैं। So USFDA, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि USA is considered as the SRA country, इनोवेटर्स बनाते हैं, एनडीए पे इनकी एप्लीकेशन सबमिट होती हैं, क्लिनिकल रिसर्च होती हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, एंड बेस्ड ऑन दोस क्लिनिकल ट्रायल्स वी डिसाइड दिस प्रोडक्ट इज क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेशियस, so that this product can be marketed accordingly in the premises that it has been registered in. Alright, so अगर मैं थोड़ा सा सुपरफिशियली आपको बताऊं तो ऑरेंज बुक बेसिकली डिफाइन ये करती है कि क्या आपका प्रोडक्ट थेरेप्यूटिकली इक्विवेलेंट है with respect to the product that has been registered. So हम थेरेप्यूटिक इक्विवेलेंसी चेक करने के लिए ऑरेंज बुक को रेफर करते हैं। आपके पास ये प्रोडक्ट्स जो है वो अगर ऑरेंज बुक में लिस्ट हो जाते हैं, TLS जिसको कहते हैं, आपके पास अगर प्रोडक्ट वहां पर लिस्टेड हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि नाउ योर प्रोडक्ट इज सेफ, is efficacious and is therapeutically equivalent to
the product which has been registered. आप therapeutic equivalency आप basically consider कर रहे होते हैं in the orange. इसी तरीके से there are so many other factors जिसको आप US FDA के अंदर once you get into this field, regulatory में जब आप आएंगे या business development में आएंगे या आप medical affairs में आते हैं, तो आपके सामने ये बहुत सारी informations आएंगी, ठीक है, ये बहुत सारी चीजें आएंगी जिनके through you will see, you will consider, you will check कि आपके पास कौन कौन से प्रोडक्ट कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं. देयर आर इंस्टेंसेस जब आपको प्रोडक्ट दिखेगा तो यूएसएफडी की वेबसाइट के ऊपर कि ये प्रोडक्ट रजिस्टर हुआ था लेकिन फॉर सम रीजंस उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया मार्केट से. अब वो डिसकंटिन्यू क्यों किया गया? वाज इट अ सेफ्टी रीजन? वाज इट अ मार्केटिंग रीजन? या इट वाज देयर एनी अदर रीजन दैट केम इनटू बीइंग जिसकी वजह से उनको प्रोडक्ट को मार्केट से उठाना पड़ा? So it is an entire chapter US FDA का अगर आप वेबसाइट को व्यू करेंगे and I would suggest all of you all कि आप लोग एक बार जरूर US FDA की वेबसाइट को विजिट करें. ड्रैप की वेबसाइट को तो आपने करना ही करना है, ये मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बता दिया था, लेकिन आई वुड अप्रिशिएट अगर आज आप US FDA की वेबसाइट को खोलें, उसको थोड़ा सा स्टडी करें क्योंकि US FDA की वेबसाइट के ऊपर एवरीथिंग इज गिवन इन डिटेल. पहले वो आपको डेफिनेशन देते हैं, उसकी एग्जाम्पल्स देते हैं, उसकी रीजनिंग देते हैं और उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस भी बताते हैं, ठीक है. सो आई वुड अप्रिशिएट अगर आप जाकर उसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे एंड मोइज स्पेशली फॉर यू बच्चे, आप जाइए ऑरेंज बुक को एक बार जरूर देखिए. उसी की आपके पास यूएसएफडीए के अंदर इसका एक प्रोविजन गिवन है ऑरेंज बुक का, उसके अंदर उसकी डेफिनेशंस, कौन से प्रोडक्ट उस बुक में मौजूद हैं, why are these products mentioned in this book. It is better for you to go there, study there and फिर हम उसको further discuss कर सकें. Alright, Anusha Farooqi का question है, does a contract manufacturing affects the quality of the product? As if it has a negative impact, so what is the benefit of doing so? Alright, so Anusha has a very good question. Contract manufacturing से related उन्होंने question ये पूछा है कि अगर quality compromise हो जाए, पहली चीज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में कॉन्ट्रैक्ट जिसको आप दे रहे हैं, द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज इंस्पेक्ट देयर साइट. तो सबसे पहला काम जो आपकी क्वालिटी एश्योरेंस का डिपार्टमेंट करता है वो जाके उनकी फैसिलिटी की इंस्पेक्शन करता है. दे मेक श्योर कि जो प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या वो सेफ है, क्या वो क्वालिटी वाइज अवेलेबल है, क्या वो एफिकेशियस है. सो बिफोर साइनिंग दैट कॉन्ट्रैक्ट एक इंटायर ड्यू डिलिजेंस होता है. ड्यू डिलिजेंस का वर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन मैं इसलिए यहाँ पे यूज कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर सब लोग रेगुलेटरी पढ़ने बैठे हैं और मैं आई वुड अप्रिशिएट, मुझे अच्छा लगेगा इनफैक्ट कि मैं जो रेगुलेटरी टर्म्स हैं इनफैक्ट वो ही यूज करूँ आप लोगों के साथ, सो दैट कल को जब आप लोगों के सामने एक वर्ड्स आए, ये वोकैबुलरी यूज हो तो आप लोगों को पता हो कि इनके मीनिंग्स क्या हैं. ड्यू डिलिजेंस बेसिकली किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले किया जाता है. इसके अंदर कुछ क्लॉजेस होते हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो कि बोथ पार्टीज हैज टू अग्री ऑन, ठीक है. तो उस ड्यू डिलिजेंस के अंदर एक पार्ट होता है साइट इंस्पेक्शन का. सो बिफोर दैट आप साइट इंस्पेक्शन किए बगैर आप किसी भी कंपनी को अग्रीमेंट नहीं देते. सो पहले आप अग्रीमेंट करने से पहले इंस्पेक्शन करते हो, उनके डेटा लॉग्स को चेक करते हो, उनके BMRs को चेक करना, बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स को चेक करना, पैकेजिंग रिकॉर्ड्स को चेक करना, उनकी फैसिलिटी को चेक करना, फिनिश प्रोडक्ट की टेस्टिंग करना. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर डन बिफोर साइनिंग दैट कॉन्ट्रैक्ट. सो डेफिनेटली हम नहीं चाहेंगे कि हम कोई भी प्रोडक्ट अगर मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं किसी भी कंपनी से तो वो कंपनी किसी भी तरीके से हमारे नाम पे कोई क्वेश्चन रेज करे या हमारा प्रोडक्ट कॉम्प्रोमाइज हो. सो वी विल नेवर वांट आवर प्रोडक्ट टू बी कॉम्प्रोमाइज. इसीलिए बिफोर साइनिंग दैट कॉन्ट्रैक्ट वी मेक श्योर कि जो भी प्रोडक्ट वहां से डिलीवर हो रहा है वो आपके पास सेफ हो, एफिकेशियस हो और क्वालिटी वाइज 100% हो. और द सेकंड थिंग इन दिस इज दैट कि आपके पास जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, the negative impact, definitely there are instances जब हमारे अपने manufactured products में issues आ जाते हैं. So 100% तो कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन yes, one of the things that जो हमारे rules and regulations and guidelines में mentioned है, ड्रग एक्ट में भी मेंशन है, ड्रैप एक्ट में भी मेंशन है
कि आपने सैंपल्स को रिटेन करना है हर बैच के। सो हर बैच में से आप रैंडम सैम्पलिंग करते हो और एटलीस्ट 5 यूनिट्स आप निकालते हो रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू फ्रॉम ईच बैच, और वो आप स्टोर करते हो शेल्फ लाइफ प्लस 1 ईयर। यानी अगर आपके प्रोडक्ट की 2 साल शेल्फ लाइफ है तो आप 1 साल प्लस करके उसको स्टोर करते हो। इन केस अगर प्रोडक्ट्स की कोई मार्केट से कंप्लेन आ जाती है, कोई इशू आ जाता है मार्केट से, तो आपके पास सैंपल्स होते हैं कि आप कंपेयर कर सकें कि ऑलराइट फाइन, अगर अपीयरेंस में कोई इशू आया है, मार्केट से बोला है कि भाई टैबलेट्स हैं, टैबलेट्स का डिस्कलरेशन हो रही है, अब आप अपना जो रिटेंशन सैंपल है उससे उसको टेस्ट करोगे, देखोगे कि भाई हमारे पास तो डिस्कलरेशन नहीं हुई है सैंपल की, हमने उसको प्रॉपर रूम टेम्परेचर पे मेंटेन किया हुआ है सब चीजें। अब हम रूट कॉज को देखेंगे कि अगर मार्केट से डिस्कलरेशन की कंप्लेन आ रही है तो व्हाट इज द रीजन। हो सकता है कि पेशेंट ने उसको डायरेक्ट सनलाइट के नीचे रखा हुआ हो सकता है वो लाइट सेंसिटिव प्रोडक्ट हो, इवन दो द प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि आपने उसको लाइट और मॉइस्चर से बचाना है, लेकिन फिर भी आपने उसको डैम्प एरिया में डायरेक्ट लाइट के नीचे रखा हो। तो डेफिनेटली वहां पर पेशेंट्स की बहुत सारी ऐसी लैकिंग्स होती हैं जहाँ पर हमें जो है ना वो केटर करना पड़ता है उनके इश्यूज को। सो येस, देर आर इंस्टेंसेस जहाँ पर आपको चेक एंड बैलेंस रखने की ज़रूरत है, बट एट द सेम टाइम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले वी मेक श्योर कि हम वी आर गेटिंग इनटू द राइट बिजनेस, वी आर गेटिंग विद द राइट पीपल। सो कोई भी एग्रीमेंट साइन करने से पहले हम अपनी तरफ से तो सारे प्रोटोकॉल्स फुलफिल कर लेते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली देर आर सम इंस्टेंसेस जो कि आपको मार्केट से कंप्लेंट्स आ सकती हैं, और वो मार्केट कंप्लेंट सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं, इनफैक्ट आपकी लोकली प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स में भी आ सकती है। I hope I've answered your question. All right, Varisha has next question, ma'am. As you say, in ASEAN countries like Afghanistan, export without registration होती है तो ये लीगल होती है। Alright, so ASEAN countries में अफगानिस्तान नहीं आता। Please understand, मैंने आपको अपनी साइड से बताया था, अफगानिस्तान is not included in ASEAN. Afghanistan, Yemen, or many other countries like this right now are going through drastic issues. उनके पास खाने पीने को नहीं है, हम सब देख रहे हैं इकोनॉमिकल सिचुएशंस उनकी क्या हैं, disasters are taking place in such regions. In this scenario, उनकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज इस बात की इजाज़त देती हैं कि अगर आपका प्रोडक्ट आपकी कंट्री में मार्केट हो रहा है, यानी फॉर एग्जांपल मेरा एक ईबीसी प्रोडक्ट है जो कि मैं पाकिस्तान में फ्रीली अवेलेबल है, मार्केट हो रहा है, और people are using that product. In that instances only ये countries उस product को accept करती हैं registration से पहले, क्योंकि एक dire need है, एक emergency situation है कि आपको medicine as soon as possible available करानी है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वहाँ registration नहीं हो रही, वहाँ registration भी हो रही है, लेकिन वो simultaneously चल रही है। And you know कि registration का process जो है, it is a time consuming process. डोजियर सबमिट होना, इवेल्युएट होना, रजिस्ट्रेशंस पहुंचना, डेफिनेटली इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, और इस टाइम स्पैन के अंदर यू नो देयर आर इंस्टेंसेस जहां पर मेडिसिन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। So in this instances only, in the special conditions only, the regulatory bodies allows the companies of the exporting country कि आप हमारे प्रोडक्ट, आप अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ सेल कर सकते हैं ओनली इफ योर प्रोडक्ट इज बीइंग मार्केटेड इन योर ओन कंट्री। सो ये डाटा है जो कि हमें एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है, एंड साइमल्टेनियसली हमें रजिस्ट्रेशंस भी लेनी होती हैं, क्योंकि देर आर सर्टेन टाइम लिमिट होती है कि इसके बाद आपको प्रोडक्ट रजिस्टर करवानी ही करवानी, उसके बगैर आपका काम नहीं हो सकता। ठीक है जी, सो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन।
All right. There's one thing that I want to mention here is that the lecture 2 that we have uploaded, हमने बहुत ज़्यादा लोगों की presence वहाँ पर नहीं देखी है. बच्चों मैं आप लोगों को सिर्फ ये बता दूँ कि you first thing is that you have paid for this lecture, and definitely you are taking out your time. You are indulging yourself into something which is providing you with a lot of knowledge and the right perspective for the industry, for the pharmaceutical industry. But unfortunately, I think a lot of people are still not vigilantly following the lectures. Lectures क्यों नहीं हो रहे हैं? अभी हमने the report that we have taken out with respect to the lectures, जो जो जिन लोगों ने enroll करवाया है, 10% बच्चों ने भी उसको attend नहीं किया है. So please make sure that you have attended all the lectures, you have attended all the quizzes, because जिन लोगों ने lectures और quizzes attend किए होंगे सिर्फ उन्हीं को certificate मिलेगा. This certificate holds a very good stature for your CV as well, because we are trying कि Pharmacon को हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर आप जैसे फ्रेश ग्रेजुएट्स आएँ और हमसे डिस्कस करें अपने मैटर्स, अपने इश्यूज डिस्कस करें, एंड डेफिनेटली व्हेन वी आर पुटिंग ऑल ऑफ दैट एफर्ट फॉर यू पीपल, हम कितना ज़रूर एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोगों की तरफ से हमें एक पॉजिटिव फीडबैक मिले. सो अगर कोई इशू है तो प्लीज़ आप लोग हमसे शेयर करें. अगर आप लोगों को लेक्चर्स का फॉर्मेट समझ नहीं आ रहा है, द वे ऑफ टीचिंग इज़ नॉट राइट, वट एवर द इशूज़ आर, अगर क्विज मुश्किल लग रहे हैं तो प्लीज़ आप हमें बताइए, सो दैट हम उसको उसके हिसाब से ऑल्टर कर सकें, और आपके फीडबैक्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं. सो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू इम्प्रूव आवरसेल्व्स एवरी डे, बट this can only happen if you can provide us with your feedback and you attend all the lectures and quizzes accordingly. So once again, I would appreciate अगर आप लोग जो है वो सारे lectures को attend करेंगे, because at the end of the day वो लोग जिन्होंने सारे quizzes और सारे lectures attend किए हैं, only those people will be awarded with these certificates. Please हम लोगों से बाद में complain नहीं कीजिएगा कि हमें सर्टिफिकेट नहीं मिला है, हमने पे किया था. देखिए, पेमेंट इज नॉट द प्राइमरी थिंग. द प्राइमरी थिंग इज दैट यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म. ठीक है जी. सो बेहतर ये है कि वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट. हम ऑन टाइम आपको क्विजेस दे रहे हैं, ऑन टाइम आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको रेगुलेटरी इंसाइट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इंडस्ट्री इंसाइट प्रोवाइड कर रहे हैं. So the only thing that we want from you is to learn and learn. Please lectures attend कीजिए और quizzes attend कीजिए, so that at the end of the day जब आप इंडस्ट्री में जाएं और आपके पास एक अच्छी नॉलेज हो, so that you can move into the industry with the same pace and knowledge. ठीक है जनाब. Alright, so we have 5 more minutes. Then we'll be ending this session. If you have any other question, please go ahead and ask your questions. I'm happy to answer all of those questions, but you have only 5 minutes for the session. So please go ahead and you can ask your questions verbally as well. मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप verbally ज़्यादा सवाल पूछेंगे, because इससे मुझे अंदाज़ा होगा कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं. इंटरेस्टिंगली, क्योंकि कोविड का एक पीरियड था जिसके अंदर हम इसी तरीके से लेक्चर्स देते थे, और मुझे आज भी याद है हम MBA में उस वक्त कर रही थी, और ऑनलाइन क्लासेस होते थे और स्टूडेंट्स सोए पड़े होते थे और टीचर सवाल पूछ रहे होते थे, किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं होता था. सो प्लीज़ इस तरीके से ना कीजिए. आप लोगों के लिए, कि आप लोगों के बेनिफिट के लिए हम ये सब कर रहे हैं, एंड इट वुड बी बेटर फॉर यू पीपल टू come ahead and ask all of these questions. Alright, Purisha, you have asked me a question again, a repeated question. बच्चे, for this question I will direct you again to my previous lectures. आपके जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं, इनिशियल लेक्चर्स हैं आपके, हमने यूट्यूब पे भी अपलोड किए हुए हैं, लिंक्डइन पे अपलोड किए हुए हैं. ये सारे सवालों के जवाब मैं उसके अंदर दे चुकी हूँ. व्हाट इज द लिंक बिटवीन रेगुलेटरी एंड बीडी. मेरे लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको रेगुलेटरी बीडी का भी लिंक बताया था, रेगुलेटरी मेडिकल का भी लिंक बताया था, मेडिकल मार्केटिंग का भी लिंक बताया था. मैं ये सारे लिंक्स आप लोगों को बता चुकी हूँ. बेटर टू गो एंड चेक माय प्रीवियस लेक्चर्स.
All right. Kanza, do you have any question? Please come ahead. Yes, ma'am, I have a question. I am asking, you said that regulatory market follow the ICH guidelines, but raw market cannot follow the ICH guidelines. Then what is the procedure for raw market process? Okay. So no, that's not the concern. Basically, raw market के अंदर सारी market fall करती है. अंडर डेवलप्ड कंट्रीज सारी फॉल करती हैं, जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो अभी भी आईसीएच गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रही हैं. उनके लिए उनकी अपनी कंट्री स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं. आप अफगानिस्तान देख लें, आप यमन देख लें, आप सूडान देख लें, ये बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि आज भी अपनी कंट्री स्पेसिफिक गाइडलाइंस फॉलो करती हैं, वो आईसीएच को फॉलो नहीं कर रही हैं. ठीक है जनाब. सो देयर आर इंस्टेंसेस जहाँ पे आपको रॉ मार्केट के अंदर 100% आईसीएच गाइडलाइंस को फॉलो करने वाले नहीं मिलेंगे. पाकिस्तान भी बाय द वे उनमें से एक कंट्री थी जो कि आईसीएच को फॉलो नहीं कर रही थी अंटिल 2019. 2019 के अंदर सीटीडी को इंट्रोड्यूस किया गया था इन पाकिस्तान, एंड देन पाकिस्तान बिकेम वन ऑफ द members of ICH guide, not the members, but one of the countries who are accepting ICH guidelines for the dossier submission. So इस वक्त there are a lot of countries जो कि ICH guidelines को follow नहीं कर रही हैं, जिसके अंदर आसियान कंट्रीज भी फॉल करती हैं. आपके पास जिनके पास ACTD फॉर्मेट है, ACTD फॉर्मेट कहीं पे भी ICH में described नहीं है. CTD is the only format which is a standard format which is described in the multidisciplinary guidelines of ICH. So बहुत सारे कंट्रीज अभी भी ऐसी हैं जो कि ICH को फॉलो नहीं कर रही हैं, एंड दे आर फॉलोइंग देयर कंट्री स्पेसिफिक गाइडलाइंस, जिसमें से पाकिस्तान भी एक कंट्री थी जिनके अपने बनाए हुए फॉर्म्स थे, फॉर्म 5, 5B, फॉर्म 5A, फॉर्म 5B. अभी भी पाकिस्तान के अंदर रजिस्ट्रेशन तो हमारे पास सीटीडी पे हो रही होती है, बट रिन्यूअल्स अभी भी पाकिस्तान की अपनी ही गाइडलाइंस के ऊपर सबमिट हो रहे होते हैं, दैट इज ऑन फॉर्म 5B. ठीक है जी. सो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि अपनी आईसीएच गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रही हैं. आई होप आई हैव आंसर्ड क्वेश्चन. Sanjay, all right. Okay. Anusha has a question. Please, Anusha, you can unmute your mic and ask your question. Yes, I have a question. You have cleared the impact of contract manufacturing. मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं, यूजुअली सबकी मैन्युफैक्चरिंग के होते होंगे, तो बेनिफिट्स क्या हैं? अ कंपनी कैन सुपरवाइज इट्स मैन्युफैक्चरिंग इटसेल्फ, so why they are approaching other manufacturers to like manufacture other products? All right, Anusha, the first thing that I've mentioned here is that one of the basic reasons why companies opt for contract manufacturing is that कि उनके पास वो facility मौजूद नहीं होती. First, one of the main things is that कि अगर मुझे इंजेक्टेबल्स बनाना है और मेरे प्लांट के ऊपर इंजेक्टेबल्स की फैसिलिटी नहीं मौजूद है, तो what is better for me? For me to have an entire section being made and then apply for the registration, or in the meantime, even if I want to build my own section which is very costly, बहुत महंगा पड़ेगा मुझे, बहुत लेबर इन्वॉल्व होगी, बहुत साल लगेंगे उसको बनाने में, और the first thing that I can do is कि मैं उसको किसी से बनवा लूँ, which is far more easier, less cost effective होगा मेरे लिए, और मेरे लिए प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल करना बहुत आसान हो जाएगा. फर्स्ट थिंग. दूसरी चीज ये है कि देयर आर अ लॉट ऑफ कंपनीज जिनके पास मार्केटिंग एक्सपर्टीज होती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टीज नहीं होती है. वो कंपनीज ऑप्ट करती हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए कि ठीक है सही है, वी कैन नॉट मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट, बट हम किसी और से बनवा लेते हैं, पर मार्केट हम अपने नाम से करेंगे, क्योंकि मार्केटिंग स्ट्रीम स्ट्रांग होती हैं. तो मार्केटिंग टीम्स क्या करती हैं, मार्केटिंग का एक पर्सपेक्टिव है जो कि आपके पास ये होता है कि कंपनीज की मार्केटिंग टीम स्ट्रांग होती है, लेकिन टेक्निकल टीम इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, टेक्निकल साइड इतनी स्ट्रांग नहीं होती. तो वो क्या करते हैं कि फिर वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं, सो दैट उनको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्वालिटी वाइज हो, एफिकेशियस हो, और ऑन टाइम अवेलेबिलिटी हो उसकी. ठीक है. सो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के बहुत फवायद हैं. सबसे पहले तो टाइम कंजम्पशन आपकी बचती है. ठीक है, क्योंकि एक प्रोडक्ट जो कि एक कंपनी ऑलरेडी बना रही है तो उसकी एक्सपर्टीज उसके अंदर होंगी. ठीक है. अगर उनके पास इंजेक्टेबल्स का सेक्शन है तो इसका मतलब वो इंजेक्टेबल्स बना रहे हैं, इसलिए उनके पास सेक्शन है.
यानी एक्सपर्टीज उनके पास मौजूद है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि मैं उनकी एक्सपर्टीज उनसे ले रही हूँ एंड आई एम इनकॉर्पोरेटिंग माई एक्सपर्टीज, यानी मेरी जो मार्केटिंग एक्सपर्टीज है मैं उसके साथ जोड़ के अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर रही हूँ। सो टाइमली प्रोडक्ट अवेलेबल भी होगा। फिर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि फार्मास्यूटिकल मार्केट जो है वो बड़ी ऑन गोइंग है, बड़ी तेज़ी से आपको पता है डिजीजेस बढ़ रही हैं, इन्फेक्शंस आ रहे हैं, बहुत सारे नए नए मॉलिक्यूल्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। तो देयर आर इंस्टेंसेस कि जहाँ पर आपके लिए प्रोडक्ट को राइट टाइम पे इंट्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, कि आप प्रोडक्ट को डेवलप करें, 6 महीने की स्टेबिलिटी लगाएं। टीटीडी का एक पूरा प्रोसेस है बाय द वे, जिसकी वजह से जो है वो ये टाइम पीरियड भी बड़ा कंज्यूम होता है। आपको रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान के अंदर एटलीस्ट 15 to 18 मंथ्स लगते हैं। अब यही अगर डोजियर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होगा मैन्युफैक्चरर के एंड पे, उसने स्टेबिलिटी भी की हुई है, प्रोडक्ट को मार्केट भी किया, उसको उसका प्रोडक्ट अवेलेबल भी है, दूसरी कंपनी उससे टॉल मैन्युफैक्चर भी करवा रही हैं, तो मेरे लिए इजी वे आउट कौन सा होगा कि मैं उस कंपनी को एंगेज कर लूँ अपने साथ, मैं उसको बोलूँ मेरा प्रोडक्ट बना कर दे और मैं उसको मैं आपसे मार्केट कर लूँ। ना मुझे स्टेबिलिटी का वेट करना है, ना मुझे रजिस्ट्रेशन के लंबे प्रोसेस में लाइन में लगना है, ना मुझे प्रोडक्शन का कोई टेंशन है, मुझे सिर्फ एक सर्टेन अमाउंट पे करनी है, मेरा प्रोडक्ट मुझे मिल जाए। So which is more easier for you to develop an entire section in your area, in your company, stability पे प्रोडक्ट लगाऊं, पहले तो मुझे एरिया का अप्रूवल लेना होगा ड्राफ्ट से, which is a very big hassle। ठीक है, आपने एरिया का अप्रूवल ले लिया, लेट्स से 2 साल के बाद 3 साल के बाद मुझे एरिया का अप्रूवल मिल गया, फिर मैंने रजिस्ट्रेशन अप्लाई की, 2 साल मुझे रजिस्ट्रेशन में लग गए, यानी कि जो मॉलिक्यूल मुझे 2024 में लॉन्च करना था मुझे उसकी रजिस्ट्रेशन 2028-29 में मिल रही है। तो अब मैं क्या करूंगी नेक्स्ट? उस मॉलिक्यूल की तो मार्केट खत्म। अब तो जब तक कि मैं उसको रजिस्टर करके मार्केट में लेकर आऊंगी, मेरे पास तो पता नहीं कितने मॉलिक्यूल्स आ चुके होंगे, मेरे पास कितनी अपॉर्चुनिटीज होंगी जहां पर मैं इस मॉलिक्यूल को इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ। ठीक है, सो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग आपके लिए एक इजी वे आउट है। ठीक है, टू इंट्रोड्यूस द प्रोडक्ट एट द राइट टाइम, इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए तो प्रोडक्ट अवेलेबल हो सकता है। अनुषा, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। Yes, quite clear. All right. Nabiha Imran has a question, ma'am. It is possible if contract givers send their people to overlook all the processes? Yes, it is possible. यही मैंने आपको बताया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट गिवर हैं उन्हीं की क्वालिटी एश्योरेंस की टीम जाकर उनकी फैसिलिटी को इंस्पेक्ट करेगी एंड देयर कैन बी इंस्टेंसेस कि वो जाकर किसी भी टाइम पे एक प्लान्ड इंस्पेक्शन रखें साल के अंदर बायएनुअली वो प्लान कर सकते हैं अकॉर्डिंगली अपने एग्रीमेंट्स के अंदर कि हम इस टाइम पे आके आपको इंस्पेक्ट करेंगे, आपके प्रोसेसेस को चेक करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली वो आपके लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, और आप लोगों का कंप्लीट राइट है बिकॉज यू आर पेइंग देम फॉर दैट, इट इज योर राइट। अगर ये प्रोसेस आप अपनी ड्यू डिलिजेंस के अंदर फाइनल कर लेते हैं कि आपने साइट इंस्पेक्शन करना होगा टाइम टू टाइम, सो यस यू कैन गो एंड इंस्पेक्ट द फैसिलिटी एंड द प्रोसेसेस। Alright, Mehvesh Hamid had a question. Who will submit dossier in contract manufacturing? Dossier applicant submit करेगा। Yes, very good question, क्योंकि मुझे ये questions बहुत बार juniors ने पूछा भी है कि dossier बनाएगा कौन, submit कौन करेगा। देखिए documents आपको जो manufacturer है वो देगा सारे documents। ठीक है, even अगर वो चाहे तो वो आपको CTD के module 3 और 2 completely provide कर सकता है, लेकिन उसको compile करना, उसको रिव्यू करना, उसको चेक करना, उसमें कोई एम्बिग्विटी है उसको एड्रेस करना आपका काम है एज एन एप्लीकेंट। क्योंकि आप प्रोडक्ट ओनर हो तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। क्वेरीज भी ड्राफ्ट आपको भेजेगा, मैन्युफैक्चरर को नहीं भेजेगा। तो जो भी एप्लीकेंट होगा वो डोसियर अप्लाई करेगा और कोई भी क्वेरी को रिस्पॉन्ड करना होगा, एड्रेस करना होगा, वो ड्राफ्ट आपको भेजेगा। आप कंपनी को फॉरवर्ड करेंगे कि ये क्वेश्चन हमें ड्राफ्ट से आए हैं, हमें इसको राइटली जस्टिफाई करके दें। अगर कोई टेक्निकल क्वेश्चन है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन है, तो वो आप खुद रिस्पॉन्ड करेंगे क्योंकि आप प्रोडक्ट ओनर है। अगर कोई टेक्निकल इशू है तो आप कंपनी से कांटेक्ट करेंगे, उनसे पूछेंगे कि ये इशू आया है, ये डेफिशिएंसी ड्राफ्ट में हमें दी है, आप इसको रिस्पॉन्ड करें, वो आपको राइट रिस्पॉन्ड भेजेंगे, लेकिन उसको उस रिस्पॉन्स को भी भेजना आपका काम। सो पोर्टल जो अब क्योंकि डिजिटल हो चुका है, डोसियर सबमिशन भी अब डिजिटल हो चुकी है, ऑनलाइन आपने डोसियर सबमिट करना है, सो आप ही डोसियर सबमिट कर रहे होंगे, आप ही के पास क्वेरी आ रही होगी और आप ही ने रिस्पॉन्स करना है उसको। अगर टेक्निकल साइड का है तो आप कंपनी से पूछेंगे, आप उनसे रिस्पॉन्स लेंगे एंड देन आप उसको अकॉर्डिंगली रिप्लाई करेंगे, बट इसका डायरेक्ट ड्राफ्ट और मैन्युफैक्चरर का डायरेक्ट कोई लिंक नहीं होगा।
I hope I've cleared your question, Manish. All right, that is it for today. I had lovely session today. मेरे पास previous session से आज ज़्यादा लोगों ने जो है वो participate किया और मुझे बहुत अच्छा लगा. इसी तरीके से please और questions मेरे पास लेकर आइए. Next week इंशाल्लाह Sunday को हम फिर अपने Q&A sessions को रखेंगे. इस week टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है. वीक 3 का टॉपिक फार्माकोविजिलेंस का है. फार्माकोविजिलेंस इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इमर्जिंग मोड के ऊपर है. इट इज़ नॉट स्टैब्लिश बट इट इज़ एन ऑन इमर्जिंग मोड. सो अगर आप चाहते हैं कि आप इसको और इन डेप्थ समझना चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप 2019 की जो गाइडलाइन है फार्माकोविजिलेंस की उसको एक बार ओवरव्यू कीजिए. अगर कोई क्वेश्चन है उससे रिलेटेड तो प्लीज़ उसको नोट डाउन करके रखिए. और क्योंकि आपके पास जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो ओपन है तो आप वहाँ पर मुझसे डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि आप लोगों के पास पोर्टल ओपन है, क्वेश्चन एंड आंसर्स का सेशन ओपन होता है. मेरे पास व्हाट्सएप के ऊपर आप लोग किसी की भी तरफ से मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होता. सो पूरा वीक आप लोगों के पास इनफैक्ट बाय द एंड ऑफ दिस सेशन ऑल द 3 वीक्स बेसिक लेक्चर्स के आपका व्हाट्सएप का पोर्टल ओपन है. आप प्लीज़ कोई भी क्वेश्चन हो थ्रू आउट द वीक आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर. आई विल रिस्पॉन्ड टू यू सो दैट आपकी कोई भी एम्बिग्विटी उस वक्त की भी है तो मैं उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँ. Thank you so much, everybody. Inshallah, we'll be meeting next week, same time on Sunday. Thank you so much and Allah.